Okay, so basically हमने तकरीबन यहाँ तक complete कर लिया था अपना lecture. What we want to do now is to quickly wind up this set of slides, and inshallah let's see if we can also start the next set of slides today. So बस ये एक छोटा सा एक one slide का एक topic है power conservation. At any instant, sum of all absorbed powers must equal all released powers in a circuit. तो अगर आप पैसिव साइन कन्वेंशन यूज करके अक्रॉस द सर्किट हम पावर कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली द नेट सम ऑफ द पावर प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज्ड इन द सर्किट शुड बी जीरो. दिस इज व्हाट दिस मींस. खैर ये एक टॉपिक था, इसको बाद में हम मजीद थ्रू यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस कोर्स यानी सर्किट एनालिसिस इसके ऊपर इंशाल्लाह हम दोबारा आ जाएंगे. फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू सर्किट एलिमेंट्स. So the distinguishing feature for any circuit element is the current voltage relationship, and it is also called the current voltage characteristics, also called element law. इसी तरह से you can also talk about voltage current relationship. जैसे current voltage relationship है, you can also talk about the voltage current characteristics or relationships. बात एक ही है. So when you talk about the current voltage relationship, we basically mean that the current is sort of dependent on the voltage. In other words, I is a function of V. And because you're probably you are studying functions in your in your calculus, तो उसके अंदर आपको पता होगा कि if you want to write a function, basically if you एक notation अगर आपने देनी है function की, तो you can write I equals f of V. You can also write I equals I of V. ठीक है. So exactly अगर मैं इसको लिखूं तो basically you can either say I, okay, just a minute. I equals f of V. So basically you can either say I equals I of V, or you can say I equals f of V. Okay, it's the same thing. It just basically means that current is the dependent variable and voltage is the independent variable, right? Slope of IV curve is always reciprocal of some resistance called dynamic resistance. अच्छा, अब अगर इस स्लोप की हम बात करें, बेसिकली सो दिस इज योर एलिमेंट, दिस एक्स, राइट. इसके साथ हमने एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया एंड वी ट्राई टू पास ए करंट थ्रू दिस एलिमेंट, एंड अल्टीमेटली वी सी कि जी you know there is a relationship that can be plotted on a graph in this form, and then we see कि इसके थ्रू जब वोल्टेज पास करते हैं तो करंट जो है वो इट इंक्रीजेस. ठीक है. अब ये चीज़ आप लोगों ने अपने ओम्स लॉ का जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर भी प्रैक्टिकली की थी. वहाँ पे ऑब्वियसली व्हाट वी सॉ वाज अ स्ट्रेट लाइन, बट इन जनरल elements don't necessarily obey Ohm's law. Ohm's law तो ये कहता है ना I equals V over R. So for instance, if I were to say, talk about Ohm's law. So Ohm's law is I equals 1 over R times V. तो ये जो function है I equals F of V, this in this form, in this case it's a linear function in the sense that voltage is simply multiplied by something called 1 over by a quantity called or a scaling factor that is 1 over R, right? So this is a linear function. ठीक है. इसके अंदर कोई v square या v cube टर्म नहीं है, तो therefore it's a linear function. ठीक हो गया. But in general this relationship is not necessarily linear, and your voltage current curve is basically it's not linear. So if it is not linear, then its slope is also not constant. अगर तो एक straight line होती तो फिर उसकी slope जो है वो हर point पे constant होती है. ठीक है. लेकिन in general the slope is not constant, and in general the slope is called G or 1 over R. It's denoted as G, or it is also denoted as 1 over R. अच्छा, अब R या G जो है यहाँ पे obviously it's not a constant value because the slope is not constant, and because it's not constant therefore it is also called dynamic resistance. इसको आप instantaneous resistance भी कहना चाहें वो कह लें, लेकिन in general यानी the correct name for it is dynamic resistance, right? Because it's a slope. Rather, it's the inverse of the slope in the current voltage characteristic, and it is not constant over the entirety of this curve. Therefore, it's called a dynamic resistance. So, as I was telling you, the reciprocal of the resistance is basically conductance. ठीक है. और di over dv अभी हमने जिस तरह से बात की, basically it's a slope. अगर तो वो slope constant होती तो हम लिखते डेल्टा I upon डेल्टा V. Because for instance अगर ये वाली सूरत हाल है जहाँ पे आपके पास एक कांस्टेंट स्लोप है, तो इसकी स्लोप आप कहीं पे भी ऑब्टेन करें, यहाँ करें या यहाँ करें, तो वी कैन सिंपली टॉक अबाउट ए फिक्स्ड
small change in I, which is for instance ये जो vertical इसकी एक इस triangle का vertical एक height है, इसी तरह से इस triangle की जो width है उसको हम कह देते हैं डेल्टा वी। ठीक है, तो ये बेसिकली डेल्टा आई यहाँ पे ले या यहाँ पे ले बात एक ही है, लेकिन इन जनरल इफ द स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, फॉर इंस्टेंस इट्स लाइक दिस, तो फिर उसके ऊपर हम एक डिफरेंशियल बेसिकली एक सिंगल पॉइंट के ऊपर हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं विच कम्स आउट टू बी डी आई ओवर डी वी। तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी और डी आई अपॉन डी वी के बीच में फर्क यही है कि डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी इज बेसिकली it's computed when the slope is constant, and this is computed when the slope is anticipated to be not constant, and this is an instantaneous slope। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, प्लीज whoever has their mic on is requested to mute it unless you want to interact with me। अच्छा, वी आई कैरेक्टरिस्टिक है। सो इन वी आई कैरेक्टरिस्टिक इट्स द ऑपोजिट। ठीक है, हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं विच इज 1 over g, डायनामिक रेजिस्टेंस, सॉरी, दिस इज डायनामिक कंडक्टेंस, सो दिस इज dv over di। सो वोल्टेज करंट रिलेशनशिप, जिस तरह से यहाँ पे करंट वोल्टेज रिलेशनशिप थी, ये वोल्टेज करंट रिलेशनशिप है। अच्छा, करंट वोल्टेज रिलेशनशिप जब हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ओवर देयर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वोल्टेज, देयरफॉर यू अप्लाई ए वोल्टेज सोर्स, और उसकी वजह से एक रिस्पॉन्स आता है विच इज द करंट। ठीक है, इसी तरह से जब हम वोल्टेज करंट रिलेशनशिप यानी वोल्टेज करंट रिलेशनशिप की बात करें तो करंट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल नाउ, एंड देयरफॉर वी हैव ए करंट सोर्स अप्लाइड हियर which when passes through the circuit or circuit element rather, it induces a certain voltage, and this voltage is the response due to this current। तो ये हो गया वोल्टेज करंट रिलेशनशिप। और इस कर्व की भी जो स्लोप है, अगेन इट्स एन इंस्टेंटेनियस स्लोप, and it is obtained using derivative dv over di, because delta v upon delta I नहीं कर सकते because it's changing, the slope is changing at every point in time, at every point along the curve, and it's denoted as small r, so this is dynamic resistance। The slope varies from point to point because you have a non-linear curve. Since g has the units of ampere per volt, so g has the units of ampere per volt, ampere upon volt, which is also called Siemens, therefore the dimension, which is the dimensions of conductance, so therefore g is called dynamic conductance because small r is called dynamic resistance। So any questions so far? G is the dynamic conductance and R is the dynamic resistance। Basically di over dv जो है that is the instantaneous slope। Basically अगर ये IV कैरेक्टरिस्टिक को कंसिडर करें, ये जो फिगर B है इसके अंदर यू कैन सी दिस इज IV कैरेक्टरिस्टिक, और इसके अंदर एक नॉन लीनियर कर्व है। इस कर्व का जब हम डेरिवेटिव लेंगे एट एनी पॉइंट अलोंग एट एनी वैल्यू ऑफ v, तो आपको di over dv मिलता है। बेसिकली जो डेरिवेटिव है ऑफ दिस कर्व, दिस इज di upon dv। अच्छा, दूसरी जानेब जब वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर करते हैं तो उस कर्व का जो डेरिवेटिव है दैट इज dv over di। तो dv over di इज वोल्टेज अपॉन करंट, जिसकी जो डायमेंशंस हैं वो एक रेजिस्टेंस की हैं, therefore इसको हम कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। ऑन दी अदर साइड di अपॉन dv की जो डायमेंशंस हैं वो हैं कंडक्टेंस की, इसलिए हम इसको एक नाम दे देते हैं g, और g जो है वो डायनामिक कंडक्टेंस है। तो डायनामिक कंडक्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस। अच्छा जी, so as an example we have this problem or solved problem rather, it's an example shown in figure 1.23, which is basically this, ठीक है, is the circuit symbol of an element called rectifier diode along with its IV characteristic। तो ये basically एक आपके पास ना rectifier diode है। बहरहाल आ जाएगी ये भी थोड़ी देर में स्लाइड अगर नहीं आई हुई। So shown in figure 1.23 is the circuit symbol of an element called rectifier diode। So this is basically a rectifier diode। It is a semiconductor device, and it is a non-linear device unlike the elements that we use in circuit analysis, that is capacitor, inductor and resistors, which are linear elements। ये जो एक element है ये non-linear element है, और इसी तरह से डायोड के बाद ट्रांजिस्टर्स जितने भी हैं वो सारे non-linear elements हैं। सो इनकी जो करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू बी नॉन लीनियर। तो ये डायोड जो है एक रेक्टिफायर डायोड की, दिस इज द करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रेक्टिफायर डायोड। ठीक है, so semiconductor theory predicts that for V greater than or equal to 0, this characteristic can be expressed as this। अब ये एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जो कि एक पर्टिकुलर डायोड के लिए है। अब ये एग्जैक्टली कहाँ से आती है, कैसे डिराइव होती है, ये आप सब कुछ पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, जो कि गालिबन 4th सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। So basically, but the point is that this is the known current voltage
रिलेशनशिप और करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन फॉर एनी डायोड, कोई भी आप डायोड उठाएंगे उसकी यही रिलेशनशिप होगी। सिर्फ ये होगा कि उस पर्टिकुलर पीस ऑफ डायोड जो है उसके लिए ये कुछ कांस्टेंट्स हैं, कैपिटल VT एंड कैपिटल IS। दीज आर ऑब्वियसली डिफाइंड पैरामीटर्स। ये कहाँ से आपको मिलते हैं? अच्छा, डायोड्स के जो है ना पार्ट नंबर्स होते हैं। जैसे 1N4007 एक डायोड का पार्ट नंबर है, डिफरेंट पार्ट नंबर्स के डिफरेंट डायोड्स होते हैं। तो ये एक सिंपल रेक्टिफायर डायोड है 1N4007, यू कैन लुक इट अप ऑनलाइन, और उसकी डाटा शीट आपको ऑनलाइन मिल जाती है। मतलब जो जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनकी डाटा शीट्स मिल जाती हैं आपको। उस डाटा शीट में IS और VT की जो पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यूज स्पेसिफाइड होती हैं। दीज आर कांस्टेंट पैरामीटर्स, ठीक है, कांस्टेंट डिवाइस पैरामीटर्स, और ये डिपेंड करती हैं इस पर्टिकुलर पीस ऑफ डायोड की कंस्ट्रक्शन पे। तो जो डाटा शीट होती है वो तो एक 1N4007 जनरल डायोड के बारे में बता रही है, लेकिन फैक्ट्री में जाहिर बात है कि वो हजारों लाखों की तादाद में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हर पीस, इंडिविजुअल पीस जो है उसका जो वैल्यू है ऊपर नीचे थोड़ी सी होती है, ठीक है, बट वो बहुत ज़्यादा डिविएशन नहीं होती है, तकरीबन वही चीज़ होती है जो डाटा शीट में आपको मिलेगी। अच्छा, यही इसका मतलब है डिवाइस पैरामीटर्स हुज वैल्यूज डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर डायोड सैंपल, मतलब एक पीस ऑफ डायोड, ठीक है। Assuming a sample with capital IS equals 2 into 10 power minus 15 amperes and capital VT equals 26 millivolts, find the VI characteristics of the rectifier diode. तो वैसे ये बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसके अंदर आपने सिंपली प्लग एंड प्ले करना है। हमें जो इक्वेशन 1.44 दी हुई है वो है करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, और पार्ट A इज रिक्वायरिंग अस टू फाइंड आउट द वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने सिंपली इसके अंदर से जो है वो V एज अ फंक्शन ऑफ I वो करना है। तो बेसिकली इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन। I ओवर कैपिटल IS +1, मतलब ये -1 दूसरी तरफ चला जाएगा, और नेचुरल लॉग ले लेंगे दोनों साइड पे, तो यू विल गेट ln 1 + I ओवर IS इक्वल्स V ओवर VT। तो VT दूसरी तरफ चला जाएगा, व्हाट यू विल गेट इज दिस, ठीक है, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। सिंपली आपने इक्वेशन को रीअरेंज करना है, और चाहें तो इसके अंदर कैपिटल VT और कैपिटल IS की वैल्यूज प्लग इन कर दें, ठीक है, बिकॉज दीज आर जस्ट कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, उसके बाद पार्ट B इज जस्ट अ मिनट। सो पार्ट B, वेयर इज पार्ट B? ये रहा पार्ट B। द वैल्यू ऑफ वोल्टेज कॉरेस्पॉन्डिंग टू करंट इक्वल्स 1 मिली एम्पेयर्स। अच्छा, अब ये जो बेसिकली इक्वेशन है और इसको जब हमने रीअरेंज किया है तो बस ये जहन में रहे कि जो कैपिटल VT है और कैपिटल IS है, दीज आर कॉन्स्टेंट्स, और इस पूरी इक्वेशन के अंदर सिर्फ दो ही वेरिएबल्स हैं, वन इज I एंड वन इज V, बिकॉज दिस इज अ वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक। तो I की डिफरेंट वैल्यू, स्मॉल I की डिफरेंट वैल्यूज डालते जाएंगे, स्मॉल V की डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी, एंड सब्सिक्वेंटली यू विल फाइंड कि दिस इज द सॉर्ट ऑफ कर्व दैट यू गेट, ठीक है। ये तो खैर वोल्टेज की वैल्यूज डाल के करंट की वैल्यूज फाइंड करना है, लेकिन इसका ऑपोजिट कर्व भी बनाई जा सकती है जो कि करंट की वैल्यूज डाल के वोल्टेज की वैल्यूज आपको मिलती रहेंगी। सो एनीवे, दे हैव स्पेसिफिकली आस्क्ड अस फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ वोल्टेज कॉरेस्पॉन्डिंग टू करंट इक्वल्स 1 मिली एम्पेयर्स। तो इसके अंदर हमने सिंपली 1 मिली एम्पेयर्स को प्लग इन करना है, विच इज यहाँ पे हमने प्लग इन किया, ये रहा 10 पावर -3, एंड कॉन्सिक्वेंटली हमें वोल्टेज मिलेगा। ऑब्वियसली कैपिटल VT और कैपिटल IS की वैल्यूज भी हमने प्लग इन की है, तो हमें स्मॉल वोल्टेज की वैल्यू मिल गई 0.7 वोल्ट्स। हाँ जी, क्वेश्चन, इज देयर अ क्वेश्चन? ये बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, और अभी तक जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं। मतलब वो एक MS Teams के ऊपर रिकॉर्डिंग मैं नहीं करता क्योंकि मेरे एंड पे भी कनेक्शन का इशू है, इस वजह से हम MS Teams पे करते ही नहीं है ज़्यादातर। कुछ फैकल्टी करती भी होगी लेकिन मैं नहीं करता। उसकी वजह ये है कि मैं करूँगा तो वो फिर रिकॉर्डिंग भी ख़राब होगी, यानी उसके अंदर भी ग्लिचेस होंगे। तो बेहतर इसलिए तरीक़ेकार मेरा ये होता है कि मैं रिकॉर्ड करता हूँ, और सब्सिक्वेंटली यानी यू कैन गो टू योर MS Teams, और MS Teams के अंदर अगर आप बेसिकली हमारी जो लीनियर सर्किट एनालिसिस की टीम है उसके अंदर फाइल्स के सेक्शन में जाएं, तो यहाँ पे आपको लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, लेक्चर स्लाइड्स भी और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी। तो अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखेंगे तो पहले दिन से जो लेक्चर्स थे सारे के सारे रिकॉर्डेड यहाँ पे मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ये ठीक है, ये लेक्चर भी मैं रिकॉर्ड करके इसको अपलोड कर दूंगा, बट ऑब्वियसली अपलोड होगा बाद में अपलोड होगा जब मैं घर जाऊँगा, यहाँ पे तो कुछ भी अपलोड नहीं होता। एनीवे, तो अच्छा, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये तो हो गया पार्ट B, ठीक है। अब पार्ट C और D भी देख लेते हैं जल्दी से। द वैल्यू ऑफ डायनामिक रेजिस्टेंस, स्मॉल r इज डायनामिक रेजिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू I इक्वल्स 1 मिली एम्पेयर्स, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो डायनामिक रेजिस्टेंस जो है वो हमें पता है dV ओवर di है, तो सबसे पहले तो हमें dV ओवर di कंप्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, अब जो हमें इक्वेशन गिवन है वो I इन टर्म्स ऑफ V है
और हमने v इन टर्म्स ऑफ i भी निकाला हुआ है, सो इससे dv ओवर di भी निकाला जा सकता है, लेकिन di अपॉन dv अगर यहाँ से निकालें और उसका इन्वर्स ले लें तो दैट इज जस्ट ईजियर टू डू। तो di अपॉन dv अगर इस ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है इससे di अपॉन dv कंप्यूट करें तो बड़ा सिंपल है, देयर इज जस्ट एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन बिटवीन, उसको जब आप di अपॉन dv कंप्यूट करते हैं तो दिस इज व्हाट यू गेट, ठीक है। बेसिकली आई एस ई टू द पावर वी ओवर वी टी और वन ओवर वी टी आ जाएगा, सो आई एस अपॉन वी टी ई टू द पावर वी ओवर वी टी इज व्हाट यू विल गेट एज इट्स डेरिवेटिव। उसका जब आप इन्वर्स लेंगे तो ई टू द पावर माइनस वी ओवर वी टी हो जाएगा, आई एस अपॉन वी टी इन्वर्स हो जाएंगे, मतलब वी टी ओवर आई एस हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल है। इसके बरक्स अगर आप यहाँ से कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे तो वो भी इजीली हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा रिजल्ट डिफरेंट आता है। उसका न्यूमेरिकल वैल्यूज में रिजल्ट वही आएगा लेकिन थोड़ा सा रिजल्ट डिफरेंट आएगा, तो इट डजंट रियली मैटर, आप कोई भी एक तरीका कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम व्हाट डू वी नीड टू डू इन पार्ट सी, द वैल्यू ऑफ आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू आई इक्वल्स 1 मिली एम्पियर। तो हमने आर की एक फॉर्म तो निकाल ली, मतलब दिस इज बेसिकली डी आई ओवर डी वी, सॉरी आर इज डी वी ओवर डी आई, ये तो हमने कंप्यूट कर लिया। अब ये तो एक जनरल वेरिएबल्स के टर्म में है, मतलब यहाँ पे वी की वैल्यू प्लग इन करेंगे, कैपिटल वी टी और कैपिटल आई एस तो चले नोन है, लेकिन गिवन स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वी प्लग इन करेंगे तो आपको स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा। ये वही बात है कि रेजिस्टिविटी dynamic resistance is not constant. At different values of V, you have a different dynamic resistance. ठीक है, या equivalently sad, at different values of I, you have different dynamic resistance. तो ये बड़ा important है कि आप जो है ना dynamic resistance को किस value of V के ऊपर compute करना चाह रहे हैं, this should be specified. तो the specified value of small v is basically, it happens to be और equivalently small I is 1 milliampere. तो इसके अंदर हमने सिंपली 1 मिली एम्पेयर प्लग इन करना है, जस्ट अ मिनट। ओके, द वैल्यू ऑफ आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू आई इक्वल्स 1 मिली एम्पेयर, तो आई इक्वल्स 1 मिली एम्पेयर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने वी फाइंड किया हुआ है, विच इज बेसिकली 0.7 वोल्ट्स, नो यस 0.7 वोल्ट्स। तो वो हमने बस यहाँ पे प्लग इन करना है, ठीक है, ई टू द पावर माइनस वी ई टू द पावर माइनस 0.7 वोल्ट्स, और अल्टीमेटली यू गेट डायनामिक रेजिस्टेंस विच कम्स आउट टू बी 26 ओम्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो रिपीट पार्ट्स बी एंड सी इफ आई इक्वल्स 1 माइक्रो एम्पेयर, तो यहाँ तो 1 मिली एम्पेयर था, अब हम 1 माइक्रो एम्पेयर के लिए भी यही दो काम करना चाह रहे हैं। सो वी फाइंड के 1 माइक्रो एम्पेयर पे जो वोल्टेज है वो 0.521 वोल्ट्स है एंड आर इज 26 किलो ओम्स। सो एज यू कैन सी कि अगर करंट डायोड में से, अच्छा ये तो खैर न्यूमेरिकल हो गया ना, एक तो इसको हमने आंखें बंद करके एक जो सिंपली वी गो विद द फ्लो, वी डू द न्यूमेरिकल एंड वी गेट द आंसर्स, तो वो तो हमने कर लिया। अब थोड़ा सा बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, I just want to take some time and discuss the results of this numerical, which have more to do with the diode's characteristics. थोड़ा सा मैं वैसे ही let me just digress for 5 minutes and just explain this. सबसे पहले तो ये देखें कि एक डायोड है, ठीक है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज अपीयर होता है 0.7 वोल्ट्स जब करंट 1 मिली एम्पेयर होता है, ठीक है। So when a current of 1 milli ampere flows through the diode, the voltage is 0.7 volts. When a current of 1 microamperes flows through the diode, the voltage across it appears to be 0.521 volts. ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक डायोड जो है ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको थोड़ा सी ये चीज़ बता रही है। अच्छा, इसके ऊपर आई टुक द लिबर्टी ऑफ डूइंग सम कैलकुलेशंस एंड दिस इज व्हाट आई कैन शेयर विद यू। अगर यही न्यूमेरिकल को आप करते हैं तो मिसाल के तौर पे हम अगर टैबुलेट करें आई और वोल्टेज को, ठीक है, तो आई अगर 1 मिली एम्पेयर था तो रादर चलें 1 माइक्रो एम्पेयर कर देते हैं इसको। अगर करंट है 1 माइक्रो एम्पेयर तो वोल्टेज अक्रॉस द डायोड कम्स आउट टू बी 0.521 वोल्ट्स। सो दिस इज द करंट थ्रू द डायोड एंड दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, 1 मिली एम्पेयर वाला जो पार्ट बी है उसका जो वोल्टेज आता है वो है 0.7 वोल्ट्स, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलें, मैंने थोड़ी सी और कैलकुलेशंस की हुई हैं। 2 मिली एम्पेयर पे आपको जो वोल्टेज मिलता है वो है 0.7 वोल्ट्स, ठीक हो गया। 100 मिली एम्पेयर पे आप अगर करें तो आपको जो वोल्टेज मिलता है वो 0.82 वोल्ट्स मिलता है, और अगर 1 एम्पेयर पे करें विच इज़ ए ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ करंट, द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज 0.87 वोल्ट्स, ठीक है। ये जो अभी एक एनालिसिस है इस टेबल के अंदर, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, इससे क्या हम अखज़ कर सकते हैं, व्हाट इज द कंक्लूजन हियर? अच्छा, ओके, सॉरी, करंट ज़्यादा होने से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कुछ हद तक कह सकते हैं। इसके अलावा और कोई ओपिनियन?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसी एंगल से नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है लीनियर, तो लीनियर तो ये है ही नहीं है, तो हम पहले ही इस्टेब्लिश कर चुके हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के तो होती वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक रेजिस्टर के लिए, नॉट फॉर ए डायोड। अच्छा, एक और ओपिनियन आई थी, बिल्कुल एग्जैक्टली तकरीबन आप यही कुछ कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इसकी वोल्टेज करंट रिलेशनशिप में ड्रॉ करूँ ना, तो तकरीबन करंट आप इंक्रीज करते जाते हैं, वोल्टेज तकरीबन आपका जो है ना एक सर्टेन वैल्यू पे आके बेसिकली फिक्स हो जाता है, यानी तकरीबन जो कि 0.7 वोल्ट्स है। इसको हम कट ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं डायोड का, किसी भी डायोड का कट ऑफ वोल्टेज है। एंड एक्चुअली यू कैन मेजर दिस यूजिंग योर डिजिटल मल्टीमीटर। तो डिजिटल मल्टीमीटर में आपने देखा होगा कि एक इस तरह का एक सिंबल बना होता है डीएमएम में, जहाँ पे प्रोब्स आप इंसर्ट करते हैं ना, वहाँ पे इस तरह का भी एक सिंबल है कहीं पे। दिस इज टू स्पेसिफाई कि यू वांट यू नो फॉर वे यू वांट टू मेजर ए डायोड। ये एक डायोड का सिंबल बना हुआ है। तो डायोड का अगर आपने कट ऑफ वोल्टेज किसी भी डायोड, मतलब कोई भी पीस है उसका डायोड का वोल्टेज आपने फाइंड करना है। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि 1N4007 या इस तरह का कोई भी डायोड का पार्ट नंबर है, वो तो डेटा शीट से तो आपको मिल जाएगा, ये 0.7 वोल्ट्स मिल जाएगा। लेकिन फिजिकली इफ यू वांट टू मेजर इट, जिस तरह एक रेजिस्टर है उसकी एक रेटेड वैल्यू होती है, आप कलर कोडिंग देख के बता देते हैं, लेकिन डायोड के लिए यू कैन एक्चुअली मेजर दिस एज वेल। वो आपको 0.7 वोल्ट्स बताएगा या 0.69 बताएगा या 0.71 बताएगा, जो भी बताएगा। बहरहाल ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इससे बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा इसी कहानी को एक्सटेंड करूं, तो वेन एवर यू कनेक्ट ए डायोड इन अ सर्किट, ठीक है, फॉर इंस्टेंस ये आपके पास एक रेजिस्टर है और ये एक डायोड है, ठीक है। तो इस सर्किट की एनालिसिस किस तरह से हो सकती है? इस तरह हो सकती है कि वी नो फॉर श्योर कि इस डायोड का के अक्रॉस जो है वो 0.7 वोल्ट्स ड्रॉप होना ही होना है, क्योंकि 1 माइक्रो एम्पियर पे भी उतना ही था, 1 मिली एम्पियर पे भी उतना ही है, 2 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 1 एम्पियर, इसके अंदर कोई खास चेंज नहीं है। तो रफली 0.7 वोल्ट्स की एक फिक्स्ड वैल्यू सर्किट एनालिसिस में हम फिक्स कर देते हैं। जब आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ेंगे ना फोर्थ सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में, तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू फिक्स दिस वैल्यू टू 0.7 वोल्ट्स, ठीक है। इसका काम ही यही है, 0.7 वोल्ट्स इसके अक्रॉस फिक्स होना ही होना है, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा वो इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा और उसके हिसाब से करंट डिसाइड होगी। तो आपने लाइट एमिटिंग डायोड्स, एलईडी का नाम सुना होगा। लाइट एमिटिंग डायोड्स कहाँ पे यूज होते हैं? सॉरी, स्क्रीन्स में, एग्जैक्टली। मोबाइल फोन, मोबाइल स्क्रीन्स हैं, लैपटॉप स्क्रीन्स हैं, इन जनरल आपके ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्लेज होते हैं, मतलब ट्रैफिक सिग्नल्स पे, ट्रैफिक इंटरसेक्शंस पे, ये सारे के सारे एलईडीज होते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स। तो एलईडी का सिंबल थोड़ा सा फर्क होता है, सिर्फ यहाँ पे 2 एरो लग जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये लाइट एमिटिंग डायोड है, और उसका जो एक कट ऑफ होता है वो होता है 1.5 वोल्ट्स, रफली इट्स अराउंड 1.5 वोल्ट्स। तो एलईडीज को कितना करंट आपने प्रोवाइड करना है इन ऑर्डर टू ड्राइव इट, इन ऑर्डर टू टर्न इट ऑन, दिस कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग दिस सर्किट, जिसके अंदर मिसाल के तौर पे आपके पास अगर 5 वोल्ट्स है और 1.5 वोल्ट्स यू नो फॉर श्योर कि ड्रॉप होना ही होना है एलईडी के क्रॉस। अगर 1 माइक्रो एम्पियर पास कराएंगे एलईडी के क्रॉस तो भी 1.5 वोल्ट्स ड्रॉप होगा, 1 मिली एम्पियर पास कराएंगे तो भी 1.5 वोल्ट्स ड्रॉप होगा, और जो भी उसकी मैक्सिमम रेटिंग है 10 मिली एम्पियर या जितनी भी 15-20 मिली एम्पियर्स, तो 1.5 वोल्ट्स ही ड्रॉप होगा एलईडी के अक्रॉस, कुछ भी हो जाए। इस टेबल से हमें ये पता चल रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस द डायोड डजंट रियली चेंज मच। आप करंट को यू बेसिकली चेंज्ड ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड हियर। यहाँ पे माइक्रो एम्पियर 10 पावर -6 है, यहाँ पे 10 पावर -3 है, और यहाँ पे वो 10 पावर -3 गायब हो गया है। सो ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड चेंज आ रहा है, लेकिन वोल्टेज इज स्टिल ओवर देयर। तो एलईडी का वोल्टेज हमें हमेशा 1.5 वोल्ट ही तकरीबन यूज किया जाता है। एग्जैक्ट आप डीएमएम से मेजर भी कर सकते हैं। अच्छा, 5 - 1.5, 3.5 वोल्ट्स आपके पास ड्रॉप होंगे इस रेजिस्टर के अक्रॉस, दिस इज फॉर श्योर। अब 3.5 वोल्ट्स में आप अगर 3.3 किलो ओम का रेजिस्टर लगाते हैं मिसाल के तौर पे, तो व्हाट इज द, यू गोइंग टू अप्रोक्सीमेटली गेट 1 मिली एम्पियर्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 10 मिली एम्पियर आ जाए, तो आप 330 ओम लगा दें। दीज आर सम स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स दैट वी कैन फाइंड इन द मार्केट। तो यू विल गेट 10 मिली एम्पियर्स, जिसके ऊपर बड़ी ब्राइट सी आपको खूबसूरत सी एलईडी जलती हुई मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस न्यूमेरिकल के बाद मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था। सो वी कैन नाउ मूव ऑन। जी, समराइज कर दूं? अच्छा, समराइज, अच्छा, इन समरी आई वुड से कि एक डायोड एक ऐसी डिवाइस होती है, इट्स सच अ सर्किट एलिमेंट के जिसके अक्रॉस आप जब बेसिकली वोल्टेज उसको देते हैं, यानी बीच में अगर चलें आप रेजिस्टर लगा दें, तो डायोड के अक्रॉस एक वोल्टेज, सर्टेन वोल्टेज ड्रॉप जो है ना वो फिक्स्ड होता है। जिस तरह से अभी ये न्यूमेरिकल है, इसके बाद इस न्यूमेरिकल को एक्सटेंड करके मैंने अभी एक टेबल भी बना के दिखाया, जो कि आप रिकॉर्डिंग में रेफर कर सकते हैं।
तो आप ये देखेंगे कि जितना भी करंट उसमें से फ्लो कर रहा है उसका जो वोल्टेज है वो तकरीबन सेम ही है, मतलब उसका वोल्टेज ड्रॉप जो है, द वोल्टेज दैट इज गोइंग टू बी ड्रॉप्ड अक्रॉस द डायोड, इट्स नॉट गोइंग टू इंक्रीज वेरी मच। तो ये इस पूरे न्यूमेरिकल की समरी थी या मेरी डिस्कशन की समरी थी। वैसे आप इसकी जब रिकॉर्डिंग दोबारा से देखेंगे ना तो होपफुली इंशाल्लाह आपको चीज़ मजीद क्लियर हो जाएगी।